the Supreme Court as well as the NGT have once again asked the authorities why exactly is this situation being allowed to recur year after year. This is the situation in Delhi as the AQI levels drop, as the temperature drops. Delhi NCR once again struggling to breathe. In New Delhi, this is Anisha Mathur for India Today. Any level beyond 400 is actually creating a severe health hazard for you. Actually, when I am talking, my throat is also choking due to the pollution, and I am struggling to speak. So that is the situation right here at the Delhi-Ghaziabad Noida border. And what is the forecast? That it is going to become worse from here. It is not going to become any better. So be cautious about your health issues. So, and you can see the cars, the vehicles are on the roads. These people are actually facing the actual health hazard. They have no other option but to come out for their work, for their businesses. So that is the main problem. That is the main issue why the pollution levels are also not going down in Delhi. So be aware, take care, and please don't come out if it is not necessary. With camera person Satya Ranjan Rautre, it's Kumar Kunal for India Today from Delhi Ghaziabad Noida border. इस लोकेशन को आप देखिए और समझिए, तस्वीरों में आपको हालात बयां होगा। ये वही भारत मंडपम है जो G20 के समय भारत का गौरव बना, और उसके ठीक पीछे नटराज की वो मूर्ति जिसको भारत ने दुनिया भर को दिखाया था। आज आप हालात ये देखिए, नवंबर के तीसरे दिन स्मॉग की चादर ने इस तरह से इस पूरे इलाके को ढक लिया है कि भारत मंडपम के बिल्कुल करीब होने के बावजूद मंडपम आपको दिखाई नहीं देगा। नटराज की मूर्ति स्मॉग की चादर में, धुंध की चादर में ढकी हुई है, और उसके सामने का फाउंटेन भी साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जब कुछ मीटर की दूरी पे ही देश का गौरव भारत मंडपम इस तरह से धुंध की चादर में ढका हुआ है, तो दिल्ली के बाकी इलाकों की बात क्या की जाए। वीडियो सहयोगी रविकांत तोतावार के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली। So the Delhi government is now implementing measures to mitigate pollution in the national capital. The challenge, of course, remains significant. Let's play out for you what Delhi's Environment Minister Gopal Rai has said on the government's action plan. दिल्ली में अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। And as expected, politics has broken out over the pollution crisis, with each party blaming the other. BJP has lashed out at Aam Aadmi Party over the pollution SOS in the capital. The Saffron Party trained guns the Chief Minister Kejriwal for the dwindling air quality. BJP's mocked AAP government's order to shut schools and said that won't help in really curbing pollution. AAP, meanwhile, has responded, accusing the BJP of politicizing the issue of the pollution crisis. AAP has questioned what the centre has done in this matter and the silence of the Union Environment Minister. The Delhi Environment Minister has also underscored that the worsening air quality is not just limited to Delhi, but the whole of North India is suffering. Amid the deteriorating air quality, the Delhi government is also holding a slew of meetings. बार बार हम मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल बयान देती है। भाजपा के केंद्र में सरकार है ना, वो बात क्यों नहीं करते हैं? भाजपा की सरकार इस पर इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है? वो चुप क्यों हो जाती है? भाई, पिछले 2 महीने से दिल्ली का पर्यावरण मंत्री मैं हूं, 2 महीने से मैं सड़क पर हूं। भाजपा का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहां है? कहां है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा उत्तर भारत में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर की भाजपा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा में जो भाजपा की सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल बयान देते हैं।
भाई मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि पहली बात ये समझना जरूरी है कि प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है, एयर सेट की समस्या, ये सारा रिसर्च आ चुका है। एयर सेट को ठीक करना है तो सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं? नहीं, सक्रियता नहीं है केंद्र सरकार की। आप बताओ, आप अगर इस समय देश के पर्यावरण मंत्री अगर सक्रिय, आप करो मैं मांग करूं, मैं तो मांग करता हूं, फिर मांग करूंगा, लेकिन उनको अपने आप क्यों नहीं पहल करनी चाहिए? सभी प्रदेशों में गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता का जो है आयोग बनाया है, उस आयोग के द्वारा बहुत हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया है। जो कोयले का एनटीपीसी इत्यादि जितने भी हैं, कई फैक्ट्री को भी वहां बंद करना पड़ा है और धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया जारी है। गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है इसके साथ। फिर मैंने कहा भाई मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भाई थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। दिल्ली का वायु प्रदूषण आज खतरनाक स्तर से भी पार हो चुका है। AQI लेवल 500 से पार हो चुका है। आज दिल्ली के अंदर हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस, जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा जरूरत अपने मुख्यमंत्री की है, दिल्ली का मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए या तो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं। दिल्ली में CNG बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो है ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है।